सकूत ढाका यहूदी और हिंदू ज़ायनिस्ट के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। उस जमाने में भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगरतला साजिश खोली और इसी तरह बार बार हमारी कौम को खबरदार किया कि हम अपनी तारीखी गलतियों को सुधार लें, लेकिन उस वक्त हमने और हमारे हुक्मरानों ने कोई ध्यान नहीं दिया और हमारी लापरवाही के नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह आज भी हमें हर पल खबरदार कर रहा है और आज भी दुश्मन की चालों को खोल खोल कर दिखा रहा है। हमारे मुल्क का मीडिया हमें दूसरों के ईमानों पे यकीन करना सिखा रहा है। हमें कश्मीर भुला दिया गया और हमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का तस्वुर दे दिया गया। हमारे हुक्मरान हमें भीख मांगना सिखा रहे हैं। सियासी जमातों के सरबराह हमें लसानियत और फिरका वारियत में बांट रहे हैं। हमारी ही फौज के खिलाफ हमें भड़काकर हमें मजीद कमज़ोर बना रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल मादा परस्ती और सेक्युलरिज्म में इस कदर गुमराह हो चुकी है कि वो अब इस निज़ाम के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हमारे मुल्क की माशत और अदालत इस वक्त बिखर के तबाही की दहाने पर खड़ी हुई है। मुल्क का तकरीबन हर इदारा अब नाकारा होने वाला है। फ्री मेसन्स और हिंदू ज़ायनिस्ट ने वही हालात बड़ी कामयाबी से पैदा कर दिए हैं जिनके जरिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा था। मीडिया से लेकर सियासी जमातों तक सब अपना अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। अब सिर्फ इंतज़ार है उस आखिरी हमले का, जिसके बाद हालात पूरी तरह से हाथ से निकल जाएंगे और मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और फिर दुनिया भर में पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क साबित कर दिया जाएगा और इंडियन और नेटो फोर्सेस पाकिस्तान पे हमला कर देंगी ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए। ये वो नक्शा है जिसको फ्री मेसन्स और हिंदू ज़ायनिस्ट ने पाकिस्तान के लिए तैयार किया। What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Sindh, Punjab. Yes, they are units, they are provinces, Pathan. Yes, but I ask you, have you forgotten the lesson that Islam taught us 13 centuries ago? And I think you will agree with me that whatever else you may be or whatever you are, you're a Muslim. That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. You've got your central government where every unit and every province is represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, not give up this provincialism. You are only pushing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims. Then you say
that Pakistan should be based on pure foundation of social justice and Islamic socialism, not otherism. Brotherhood, equality, fraternity of man, these are all the basic points of our religion, culture and civilization. And we fought for Pakistan because there was danger of denial of these human rights in this subcontinent. A matter of very great importance in Pakistan. And there are many in Pakistan who are going to be listening to this session. Ghazwa is a war in which the Prophet ﷺ participated. Ghazwa. Otherwise, war is harb. For some reason which I cannot explain, there is this tendency to use the word Ghazwa for a war which will take place in Akhiru Zaman against a Hind. Hind is that entire area which today comprises India, Pakistan, Bangladesh, that is Hind. And there are ahadith that a Muslim army will conquer Hind. A Muslim army fighting in Akhir Zaman will have to be an army of mujahideen. Secondly, the army which will conquer Hind, and today India is Israel's most strategic ally in the world after the United States. So of course, if this is going to take place, I'll be very happy about it. Oh yes, this is Israel's most strategic ally. And if a Muslim army is going to conquer Hind, it'll have to be an army that will also oppose to Israel. Is the Pakistan armed forces like that? कुछ लोग नाउम्मीद हो जाते हैं मुसलमानों का हाल देखकर, कमजोरियां देखकर, तबाहियां बर्बादियां देखकर। नाउम्मीदी कुफर है, नाउम्मीद ना हो। एक वो भी वक्त था मदारस के अंदर सिर्फ वो दाखला लेता था जो काना होता था, अंधा होता था या लंगड़ा होता था। वालिदैन कहते थे अब ये स्कूल में तो पढ़ नहीं सकता, मदरसे में दाखिल करा दो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब आ चुका है। इनकलाब की तकमील सिर्फ देर है, इनकलाब आ चुका। जो लोग इस अल्लाह के दीन के इनकलाब को पसंद नहीं करते वो हैं बड़े बेचैन, बड़े बेकरार। लेकिन ये सुन लें, प्रोग्राम तो मेरे रब का चलेगा, तुम्हारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। यहां फवाद बेटे मौजूद हैं। मैंने अर्ज की थी बेटे सबसे पहला काम ये होना है, अमेरिका यहां से जाएगा और इंडिया को हैंड ओवर करेगा। कोई कमाल की बात नहीं कर रहा हूं कि बड़ा कोई कमाल की बात कर रहा हूं। मेरे अल्लाह ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ, प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा बेहतरीन सूरत से चल रहा है। कल या परसों एग्रीमेंट हो गया इंडिया का
अफगानिस्तान के साथ रुए ज़मीन पर जो असल मुशरक हैं, जो मेरे नबी पाक के ज़माने में थे, बुतों की पूजा करते थे, अब वो सिर्फ हिंदुस्तान में रह गया है। असल कुफर ये है। और मेरे महबूब पाक की हदीस पाक है, इस जंग में जो शरीक होगा, मेरे आका फरमाते मैं मोहम्मद उसको जन्नत की बिशारत देता हूं। अब ये कोसार के जवान, ये पहाड़ी मुजाहिद, अब इनका रुख अमेरिका तो भाग जाएगा, चला जाएगा, अब रह जाएगा बनिया। इस बनिए की धोती फाड़ने का वक्त आ गया है इंशाअल्लाह। लेकिन इसमें जो रुकावट के अंदाज है बड़े मुख्तलिफ है। फौज के खिलाफ उकसाएंगे, दीन के खिलाफ उकसाएंगे, ये जो इंतहा पसंद इनकी मिसाल देके इस्लाम के खिलाफ उकसाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे रब का फजल है, जिसको चाहता अता करता है। इस इस्लाम की बाग दौड़, मुजाहिदों की कमान अल्लाह ताला ने पाक फौज के हवाले की है। ये वक्त बहुत करीब है और आप देख रहे हैं, एक वक्त था लोग फौज को गालियां देते थे कि फौज में गैरत नहीं है, फौज में हया नहीं है, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये कोई जवाब नहीं देती, कोई बात नहीं करती। आपने देखे कि फौज के तेवर बदल गए हैं। ये मेरे रब का फजल, मेरे नबी पाक की नजर है और वो कमान बनने में देर नहीं। चंद सालों के अंदर अंदर, सदियां नहीं कह रहा हूं, चंद सालों के अंदर अंदर अल्लाह ने इस पाक फौज को अजमत देनी है, वो शान देनी है, वो मुकाम देना है। ये कोसार के लोग, ये जो एजेंसियां हैं, पहाड़ी लोग हैं, ये इनके दाएं बाएं होंगे, ये अल्लाह के मुजाहिद बंदे खड़े होंगे। कश्मीर फतह होते होते हिंदुस्तान फतह हो जाए। कहीं ऐसा ना हो ये काफिला अल्लाह के करीब होता जा रहा हो और आप दाएं बाएं खड़े होकर वक्त गुजारने, वक्त जाया करें।